ان میں سے ایک چہرہ میرا شناسا تھا۔ یہ نویدہ بھابی کے ملازم رمضان کا چہرہ تھا۔ میرے دماغ میں بادلوں جیسی گرج ہو رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ رمضان کی موت کے بعد امیر الدین کے اہل خانہ اس کی لاش لے گئے تھے۔ نویدہ بھابی بھی بے حد غمزدہ تھیں، کیونکہ رمضان بچپن ہی سے ان کے گھر میں تھا۔ بڑے بھائی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی گئے تھے۔ پھر یہ کفن پوش لاش یہاں کہاں سے آ گئی، اور باقی 5 لاشیں؟ اسی وقت مجھے پیچھے سے آہٹ سنائی دی اور میں پلٹ پڑا۔ مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر انتہائی مکروہ وجود کھڑا تھا۔ اس کا بدن بالکل ڈھانچے جیسا تھا، لیکن آنکھیں، خدا کی پناہ کیسی دہشت ناک آنکھیں تھی۔ مجھے جاوید انصاری کی باتیں یاد آ گئیں۔ انہوں نے بنسی راج کا یہی حلیہ بتایا تھا۔ اسی وقت مجھے اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی، بنسی راج ہے ہمارا نام۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کرخت لہجے میں بولا، تم اس جھونپڑے میں رہتے ہو؟ تو وہ سوالیہ انداز میں بولا، یہ لاشیں کس کی ہیں؟ مجھے اور کوئی سوال نہ سوجا۔ پائل ہیں سسرے، کہاں سے لائے ہو تم انہیں؟ قبرستان سے۔ کیوں؟ 7 پورے ہو جائیں تو ارتھی جلوائیں گے ان کی۔ وہ بے خوفی سے بولا، تم نے انہیں ان کی قبروں سے نکالا ہے؟ تو اور کیا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، اور مجھے چاروں طرف سے ہنسنے کی دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ تب پہلی بار محسوس ہوا کہ اطراف میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جرم ہے، تم پاکستان میں ہو۔ ارے غلط ہوا ہے۔ شنکا مہاراج نے یہ بات بتائی تھی اس ہٹ دھرم کو، کہی تھی کہ لاکھوں کٹ جائیں گے، سو کٹ گئے، تو ہار پاکستان بن گیا۔ مسعود مہاراج کی اکشا پوری ہو گئی، پر کتنے کٹ مرے، بس گنتی نہیں۔ کون مسعود؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں اپنے والد کا نام سن کر چونکا۔ بہت ہو گئی، ہمارے کام میں مت گھسو، چلے جاؤ یہاں سے۔ بس بہت ہوئی۔ وہ منہ بنا کر پلٹا اور جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ میں کچھ لمحے رکا، پھر واپس چل پڑا۔ جتنی ہمت تھی وہ کافی تھی۔ کار میں بیٹھا اور واپس پلٹ پڑا۔ دماغ سن ہو رہا تھا۔ کار بڑی مشکل سے چلا رہا تھا۔ راستے طے ہو رہے تھے۔ اس وقت جس جگہ سے گزر رہا تھا وہ بہت سنسان تھی۔ شفاف سڑک کے کنارے مجھے ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ کوئی عمر رسیدہ گدڑی پوش تھا، شاید لفٹ مانگ رہا تھا۔ میں نے کار کی رفتار سست کر دی۔ اس کے قریب جا کر رک گیا۔ بے حد ضعیف شخص تھا۔ لمبی داڑھی سینے پر لہرا رہی تھی۔ شہر جا رہے ہو عزیزی؟ اس کی لرزتی آواز ابھری۔ جی جی، حکم کیجئے، میں نے کہا۔ ہمیں لانڈی چھوڑ دو گے؟ ہاں ہاں آئیے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، انہیں ہاتھ کا سہارا دے کر اندر بٹھا لیا، پھر کار آگے بڑھا دی۔ لانڈی کون سے نمبر جائیں گے؟ 4.5 نمبر، وہاں مسجد نور ہے، ہم اسی مسجد میں رہتے ہیں۔ اچھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ کوئی ایسا بزرگ ملے جو ان پراسرار واقعات کی عقدہ کشائی کر سکے، ان سے تذکرہ کروں، شاید کچھ رہنمائی کر سکیں۔ اس خیال سے میں نے کہا، آپ یہاں اس سنسان سڑک پر کیا کر رہے تھے محترم؟ اس وقت تو یہاں کوئی سواری نہیں ملتی۔ تم مل تو گئے۔ بزرگ کی آواز میں خوشی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک بوٹی کی تلاش میں آیا تھا، ایک ضرورت مند کے لیے دوا بنانی تھی۔ آ تو گیا، مگر واپسی کے لیے کوئی سواری نہیں ملی۔ تب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیج دیا۔ آپ حکیم ہیں، بہت بڑا نام لیا تم نے۔ صاحب حکمت تو ذات معظم ہے۔ مجھ حقیر کو اتنا بڑا نام نہ دو۔ ایک مشکل ہے میری، جس کے لیے مجھے کسی صاحب علم کی تلاش تھی۔ اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ممکن ہے مالک دو جہاں نے اس وقت مجھے تمہارے لیے ہی یہاں کھڑا کیا ہو۔ وہ اسی طرح اپنے بندوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ بہت احسان ہوگا آپ کا۔ نہیں بیٹے، بتاؤ کیا بات ہے؟ بات کچھ طویل ہے۔ کیا تمہارے پاس وقت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، میں ڈاکٹر ہوں، ایک ہاسپٹل میں نوکری کرتا ہوں۔ رات کو 11 بجے میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، اس لیے مجھے فرصت ہے، بشرط یہ کہ آپ کے پاس وقت ہو۔ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا۔ گھر کے سامنے حاجی منیر کا چائے خانہ ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے ان کی چائے، چنانچہ ہماری طرف سے چائے کی دعوت قبول کرو۔
वहीं बैठकर बातें करेंगे। लांडी के एक गुंजान गोशे में मस्जिद नूर के सामने झोंपड़ा नुमा होटल के बेंचों में से एक बेंच का इंतखाब करके मैं अहमद अली साहब के साथ बैठ गया। यहाँ हर शख्स उनका एहतराम करता था, जिसका अंदाजा उनके होटल में कदम रखते ही हो गया था। चाय वाकई बहुत लजीज थी। मैंने फरमाइश करके 2 कप चाय पी, फिर अहमद अली के कहने पर अपनी कहानी का आगाज किया। ये कहानी मैंने उस वक्त से शुरू की जब जावेद इंसारी हॉस्पिटल में दाखिल हुए। मैंने उनके शाने पर उभरे हुए गोश्त को देखा, फिर उसके बाद मैंने बेकमो खास पूरी कहानी उनके गोश्त गुजार कर दी। फिर मैंने बिल्ली के जिक्र के साथ पूरी तफसील उस वक्त तक सुना दी जब मैं इन बुजुर्ग हस्ती से मिला था। अहमद अली साहब बड़ी तवज्जो से ये दास्तान सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद का क्या नाम था? मसूद अहमद। दादा का क्या नाम था? महफूज अहमद। हिंदुस्तान में कहाँ रहते थे? मैं तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ। वैसे बाबा का ताल्लुक सहारनपुर से था। अहमद अली कुछ सोचते हुए बोले, दुआ तावीज के कायल हो? क्यों नहीं, बफजले ताला मुसलमान हूं। अहमद अली साहब ने अपने लिबास की जेब से एक तावीज निकाला और उसे मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, इसे जेब में रख लो, जाया ना होने पाए। कल कुछ वक्त निकाल सकोगे? जी जरूर, बताइए कब? मैंने सवाल किया। तो कल भी रात की ड्यूटी है? जी, जोहर की नमाज के बाद आ जाओ। कहाँ रहते हो? जमशेद रोड पर। दोपहर के खाने के बाद चल पड़ना, मैं यहीं मिलूंगा। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। अहमद अली साहब ने गर्दन हिलाकर कहा, चलो अब उठते हैं, बहुत वक्त हो गया। उन्होंने मेरी कार तक मुझे पहुंचाया और फिर बोले, मुझे यहाँ तक लाने का शुक्रिया, कल मुलाकात होगी। मैं अहमद अली को सलाम करके वापस चल पड़ा। तावीज़ मैंने संभाल कर जेब में रख लिया। आज सब कुछ बहुत अजीब हुआ था। एक एक बात याद आ रही थी। बंसीराज कोई बदरू मालूम होता था। मुझे लग रहा था जैसे वो बदरूहें अब पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई हैं। खास तौर से मुझे रमजान की लाश याद आ रही थी। वो वहां कैसे पहुंच गई? अचानक एक ख्याल मेरे जहन में सरायत कर गया। क्या रमजान की लाश उसकी कब्र में ना होगी? क्या उसकी कब्र खुलवा कर देखा जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? रास्ते भर ये सोच जहन पर हावी रही। वहां 6 लाशें थीं। वो बाकी कौन थे? कहां से लाए गए थे? 7वां पायल मैं था। अगर ये मान लिया जाए कि उस दिन जब भाभियां बात कर रही थीं और पायल के बारे में जिक्र करते हुए नवीदा भाभी ने बताया था कि रमजान पायल है, तो एक पुरस्रार मकड़ा नमूदार हुआ था और भाग गया था। उस वक्त मेरे बारे में भी बात हुई थी, मैं भी पायल था। तो क्या 7वां शिकार हूं मैं? घर आकर जहन बोझल रहा। कई बार मैंने सोचा कि चलकर रमजान की कब्र कुशाई करवाऊं, लेकिन अव्वल तो ऐसी कोई तदबीर जहन में नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि सब शैतानी चक्कर है। अगर उसकी कब्र खाली मिली तो मैं क्या कर सकूंगा? कब्र कुशाई की क्या वजह बताऊंगा? फिर दूसरे लोग भी तो हैं, उनकी लाशों की भी बेहुरमती हो रही है। पुलिस को खबर करूंगा तब भी कोई फायदा नहीं। अगर वो लाशें वहां ना मिली तो मुझसे पूछा जाएगा कि मैं वहां क्यों गया था। हौसले पस्त हो गए थे। खामोशी इख्तियार कर ली। रात को हस्बे मामूल तैयार होकर हॉस्पिटल गया। खुशखबरी ये थी कि डॉक्टर सायरा दिन की ड्यूटी में चली गई थी। उसकी जगह डॉक्टर नरगस ने ले ली, जो एक संजीदा और किसी कदर उम्र रसीदा खातून थी। बोझल माहौल में वक्त गुजरता रहा, कोई मसरूफियत नहीं थी। रात को 1 बजे मैं अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बैठ गया, लेकिन जहन पर उदासी तारी थी। बैठे बैठे मुझे एकदम एहसास हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने चौंक कर दाएं बाएं देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। तब मेरी निगाह एक सतून की तरफ उठ गई और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगीं। 100% वही मकड़ी या मकड़ा था जो उस दिन मैंने देखा था। इससे पहले मैंने जावेद इंसारी के हाथ से निकलते हुए देखा था। फर्क ये था कि वो थोड़ी छोटी थी, लेकिन इसकी आंखें 100% ऐसी ही थीं। इन आंखों ने मुझे घूरते हुए देखा था। ऐसी आवाज उभरी थी जैसे किसी कैमरे से तस्वीर खींची गई हो। इस वक्त भी इस मकड़े की आंखें मुझे घूर रही थीं। तब ही मुझे एहसास हुआ था कि कोई मुझे घूर रहा है। मुझे शदीद खौफ का एहसास हुआ। क्या ये मकड़ा अब मुझ पर हमलावर होने वाला है? क्योंकि मैं भी पायल हूं। मुझे एकदम तावीज याद आया जो अहमद अली साहब ने मुझे दिया था, लेकिन ये याद करके मैं सख्त नर्वस हो गया कि तावीज मेरे दूसरे लिबास की जेब में था। मुझे वो निकालना याद नहीं रहा था। तभी मेरे कानों में एक बारीक नामानूस आवाज उभरी,
भूरिया चरण है हमारा नाम बच्चे। तुहार पिताजी से हमारी बड़ी लाग डांट थी। साफ लग रहा था कि ये आवाज मकड़े के मुंह से निकल रही है। कहा था हमने मसूद से 1000 बार, मनोई की मौत का कारण ना बने, पर ना माना। एक शंका मरे तो उसके साथ लखन मर जाएं। अरे हमरे 3 जन्म रहे, पर वो बेचारे मारे गए ना, वापस नहीं आए संसार में। पर हम आ गए हैं बिटवा। एक ताऊ की कसर है, पर तुझे नहीं मारना हमने। जो काम तेरे पिता ने नहीं किया वो तू करेगा, हमें खंडोला बनाएगा। आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, मगर इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जवाब भी क्या देता। वो कह रहा था सौगंध भवानी मैया की, वो इनाम देंगे तुझे जो संसार में जीवन भर याद रखेगा। सुन, हमसे झगड़ा ना करियो, ठंडे मन से हमारा काम कर। हम तेरा बड़ा नाम करेंगे, फिर तू हमारा काम करना। उसी वक्त दूर से 2 नर्सें आती दिखाई दी। जल्दी नहीं है हमें, सोच ले आराम से, फायदे ही फायदे हैं। हम चलते हैं, अपना काम कर। ये कहकर मकड़ा तेजी से ऊपर छत की तरफ भाग गया, फिर छत पर पहुंचकर गुम हो गया। मैं दम बखुद था। क्या फजूल बातें सुनी थी मेरे कानों ने। अल्फाज नामानूस थे, लेकिन गौर करने से समझ में आते थे। दोनों नर्सें मेरे पास से गुजर गईं। वो दूसरी सिमत मरीजों के कमरे की तरफ जा रही थी। मेरा जहन शदीद उलझन का शिकार था। अब बखूबी अंदाजा हो गया था कि मैं कुछ गैर मामूली कुव्वतों का शिकार हूं। वो कुव्वतें नाकाबिले फहम हैं। अब तक बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजारी थी। वालिद साहिब कारोबार करते थे, बड़ी खुशहाली थी। ये कारोबार मेरे चच्चा अख्तर की शराकत में था। मेरी फूफी शमसा, मामू अबरार, मेरे दादा जो मेरे वालिद साहब मसूद अहमद के मामू थे। एक बड़ा खानदान था जो ज्यादा फासलों पर नहीं था। सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे। वालिद साहब किसी कदर दरवेश मंच थे। कभी कभी घर में हिंदुस्तान का तज़किरा होता था, जो मेरे लिए गैर दिलचस्प था। मैंने उन तमाम बातों को कभी गौर से नहीं सुना था। बड़े दोनों भाई शादीशुदा थे। फिर वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं अपनी तालीम में मगन रहता था। अब मुझे जिंदगी की वो डगर मिल गई थी जिसके लिए मैंने मेहनत की थी। लेकिन ये सब कुछ, क्या मैंने इस मकड़ी के मामले को छेड़कर गलती की थी? लेकिन वो तो मेरा कारनामा था। डॉक्टर रिजवान ने जिस चीज को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था, मैंने उस पर तवज्जो देकर जवेद इंसारी को अल्लाह के फजल से नई जिंदगी दी थी। ये मेरा फर्ज था जिसे मुझे जिंदगी भर सरंजाम देना था। फिर इसे गलती क्यों कहा जाए? दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। कोई ऐसा नहीं था जिसे हमराज बनाऊं, उससे कहूं कि मुझे इन मामलात से रोशनास कराए, मुझे सही रास्ता दिखाए। उसी वक्त रोशनी की एक किरण चमकी। अहमद अली, उन्होंने मुझे कल बुलाया था। इसके साथ ही मुझे दिया हुआ तावीज़ भी याद आ गया। बड़ी गलती हो गई थी। अब मुझे वो तावीज़ हमेशा अपने पास रखना होगा। रात गुजर गई। दूसरे दिन मामूलात से फरागत पाकर मैंने अहमद अली के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। छोटी भाभी ने मेरी तैयारी पर मुझे छेड़ते हुए कहा, आखिरकार ऊंट पहाड़ तले आ ही गया। मुझसे कुछ फरमाया आपने? ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू। वो शरारत से बोली, माशाअल्लाह, आजकल उर्दू अदब का मुतालिया हो रहा है। शायद इस तरह के मुहावरे उर्दू अदब में ही मिलते हैं। वैसे मुझे भी शाजिया बहुत पसंद है। जी, मैंने कान पर हाथ रख कर कहा। खास तौर से मुझे रोजाना फोन करती हैं। भाभी ने अपनी हाँकते हुए कहा, शाजिया? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, जावेद इंसारी की साहबजादी। अल्लाह अकबर, क्या शान बेनियाजी है। बड़ी भाभी, बल्कि बहुत प्यारी भाभी। झूठ बोलूं तो तू मर जाए। मेरे दिलो दिमाग के किसी मफलूज गोशे में भी ऐसा कोई अहमकाना ख्याल नहीं है। अरे वाकई, फिर ये मामूलात, ये गैर मामूली तब्दीलियां कैसी हैं? बस इसी दुनिया का एक बासी हूँ, 50 काम होते हैं। मैंने जवाब दिया और भाभी का मुंह लटक गया। तोबा तोबा, सारा मजा करकरा कर दिया। वो बोली और मैं गहरी सांस लेकर अपने कामों में मसरूफ हो गया। मुझ पर जो बीत रही थी घर में किसी को बता भी नहीं सकता था। आखिरकार तैयार होकर लांडी चल पड़ा। रास्ते में न जाने क्या क्या सोचें दामनगीर रही। तवील सफर खत्म हो गया। मैं मंजिल पर पहुंच गया। अहमद अली साहब चाय खाने के एक गोशे में नजर आए।
उस वक्त चाय खाना तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। मैंने उनके पास पहुंचकर सलाम किया और सामने बेंच पर बैठ गया। चाय मंगवा लेते हैं। जी, मैंने कहा। अहमद अली ने चाय के लिए कह दिया। हमने चाय के दौरान इस मौजू पर कोई बात नहीं की। बस अहमद अली ने मेरे घर के लोगों की खैरियत पूछी। चाय ख़त्म हुई तो वो बोले, मैंने तुम्हारे मसले पर गौर किया है अजीज़ी। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बस यूँ समझो एक दीनी तालिब इल्म हूँ। इल्म की तलब कायनात के आखिरी दिन तक ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मालिक कायनात की कायनात बहुत वसी है और उम्र मुख्तसर। जो कुछ तुम्हारे इंकशाफात से मेरे इल्म में आया है वो ये है कि तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाक़यात आर्जी या इत्तेफाकिया नहीं, बल्कि इनके डांडे बहुत पीछे से मिलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। तुम्हारे वालिद साहब का नाम मसूद अहमद है ना? जी। बुजुर्गों में कोई हयात है? जी, मेरे चचा अख्तर अहमद हैं और वालिद साहब के मामू रियाज अहमद हैं। मेरी वालिदा, फूफी सब मौजूद हैं। माशाअल्लाह काफ़ी ज़ईफ़ होंगे। ये वो लोग हैं जो तकसीम से कबल हिंदुस्तान में आबाद होंगे। जी बिल्कुल। तो फिर माजी की बातें भी दोहराते होंगे? हाँ, जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तब। कोई ऐसा वाक़या जो तुम्हें अजीब लगा हो? जो लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे वो तकरीबन अब दुनिया से जा चुके हैं। जो हयात हैं उनके लिए वो भयानक माजी आज भी खौफनाक यादों से भरा हुआ है, इसलिए वो दोहराने से गुरेज करते हैं। मैंने उनसे कोई अजीब बात नहीं सुनी। और कोई ऐसी बात जो तुम्हारे लिए हैरतनाक हो? शदीद, मैंने कहा। क्या मतलब? गुजरी रात मेरे साथ मजीद वाक़यात पेश आए। क्या? अहमद अली चूक पड़े। मैंने उन्हें मकड़ी और उसके मुंह से निकलते अल्फाज के बारे में पूरी तफसील बताई। अहमद अली के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, भूरिया चरण, शंका खंडोला, ओ मेरे मालिक, हमारी हिफाजत फरमा। ये नाम कैसे हैं मुहतरम? ना जानने वालों के लिए बेमैनी है, लेकिन इस कदर भयानक के अल-अमान अल-हफीज। मिल्लत इस्लामी सिर्फ दुश्मन सियासत का ही शिकार नहीं, बल्कि दीन के दुश्मन भी आज तक इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। एक खंडोला मिल्लत इस्लाम के लिए एक एटम बम से ज्यादा खौफनाक है। तुम्हारे पास एक तावीज़ है। जी। उस वक्त वो तावीज़ तुम्हारे पास था जब मलून मकड़ा तुमसे महवे गुफ्तगू था? जी नहीं, मैंने शर्मिंदगी से कहा। क्या मतलब? मैं उसे घर भूल गया था। उसने कहा था कि तुम्हारे वालिद से उसकी लाग डांट थी, जो काम उन्होंने नहीं किया वो तुम करोगे। जी, उसने यही कहा था। उसने तुम्हें लालच भी दिया था। जी, बड़ी तशवीश की बात है। मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ बेटे, जिस वक्त भी मुश्किल पेश आए अल्लाह वालों को मत भूलना, उनसे रहनुमाई की दरखास्त करना। ये भूरिया चरण, पद्मा, शंका, खंडोला आखिर क्या बला है? ये काले जादू के मुख्तलिफ मदारज हैं। इन मदारज में साहिराना, बल्कि यूं कहना चाहिए कि शैतानी कुव्वतों की कार फरमाई है। वो अगर कहता है कि खंडोला बनकर वो जबरदस्त कुव्वत हासिल करेगा तो इसमें हकीकत है, क्योंकि काले जादू के शिकार बेशुमार अफराद नजर आते हैं। लेकिन क्या कोई काले जादू का माहिर दूसरा जन्म ले सकता है? हरगिज नहीं। हमारे मजहब में इसका कोई तसव्वुर नहीं। हम सिर्फ रोज़े क़यामत ही नई जिंदगी का अकीदा रखते हैं। अलबत्ता शैतानी कुव्वतों को शैतान का सहारा हासिल है। शंखा और खंडोला वगैरह जादू के जोर से मुमकिन है कि आर्जी तौर पर तवील जिंदगी हासिल कर लेते हूँ, मसनूई मौत के बाद दोबारा अपने मकरू अमल जारी रखने के काबिल हो जाते हूँ। असल में रूह के पुजारी हिंदू मत के पैरोकार हैं। उनके अकीदे के मुताबिक जस्ते हाकी तो मरकर नजरे आतश हो जाता है और राख बनकर उड़ जाता है, या मट्टी में मिलकर मट्टी बन जाता है, मगर उसकी आत्मा वापस पलट आती है। इसके जरिए एक नया कालब वजूद में आता है, जो चरिंद, परिंद, कीड़ा या खूनखार दरिंदा भी हो सकता है। उसको आवागोन कहा जाता है। ये सब कुछ कर्म के मुताबिक होता है, मगर काले जादू के अमल में इसकी शक्ल बदल जाती है। जैसे तुम किसी पीली मकड़ी का तज़किरा करते हो, जो भी अपनी नई तख्लीक के अमल से गुजर रही है और साथ खास मुसलमानों के खून पीकर ये अमल करना चाहती है, ताकि काले जादू के आखिरी स्तून खंडोला की कुव्वत हासिल कर सके। अहमद अली साहब की बयान करदा तफसीलात ने मेरे दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। क्या इस साइंसी दौर में भी ऐसी बातों पर यकीन किया जा सकता है?